Class 12th, as we have discussed about the derivation of Arrhenius equation, now we are focusing on the numerical portion. And this the numerical portion. I have given you the one of the numerical, that the rate of the most reactions double when their temperature is raised from 298 Kelvin to 308 Kelvin. Calculate the activation energy of such a reaction. Right. So R की value note कर लीजिए. They have given you 8.314. ठीक. So let's see what things are given to us. First of all, what they have asked you, that the rate of most of the reaction is doubled when there is temperature is raised from this thing. तो जैसे अगर हम देखते हैं K1 है पहला है, तो ये K1 ही है, और K2 जो है वो फर्स्ट का डबल हो गया, यानी ट्वाइस ऑफ K1 हो गया है. ये दो चीज़ें हमें गिवन है. सेकेंड थिंग, टेम्परेचर फॉर दिस T1 they have given you 298 Kelvin, and T2 they have given you 308 Kelvin. Their R value also given 8.314, and activation energy they are asking. So first our duty is to just find out all the values, what values is given to us, then only we can depute. So please write down according to Arrhenius equation, because it's just the question is based on Arrhenius equation. You can see temperature is there, 2Ks are there, EA is there, because in earlier first order half life we have not studied about the activation energy. In that portion activation energy is not there. So K was there, T was there, so don't get confused, क्योंकि ये सिर्फ एक ही है, दो अलग वेरिएशन है. तो एक्टिवेशन एनर्जी, now you put the formula log K2 upon K1, just now only you have done in the previous video. 2.303 R, this is 1 upon T1 minus 1 upon T2, close the bracket. So this is log how much, twice of K1 upon K1. Activation energy you have to calculate. Please substitute, you get the marks on formula, substitution and answer with unit. This way the marks are distributed in your board examination. ठीक है, तो ये आपका log 2.303 इंटू 8 पॉइंट कितना दिया है हमने, 314 माइनस 1308. तो ये आपकी वैल्यू जो निकल जाएगी वो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 इंटू 0.3010. ठीक है, 10 log 2 की वैल्यू होती है अपॉन 10. यू हैव द कैलकुलेटर्स विथ यू. इट्स योर ड्यूटी टू कन्वर्ट इट. ठीक है, जूल में है, किलो जूल में लिखेंगे तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड कर दीजिएगा 1000 से. This way you will do your numerical. Now this is next question. A certain reaction is 50% complete in 20 minutes at 300 Kelvin, and the same reaction is again 50% complete in 5 minutes at 350 Kelvin. Calculate the activation energy of it. It is a first order reaction. So they have asked you if it is first order reaction. So what they have given you, that it's a first order reaction and you have to calculate the activation energy. So first of all, you can see there is no K is been given to us. 50% completed they are saying you, and but no value of K is there. Time is given to us, but again there is something is missing. So फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 50% कम्प्लीटेड है, 20 मिनट्स में हो रहा है. सो लेट्स टॉक अबाउट, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ K1 एंड K2. तो K1 और K2 की हम वैल्यू कैसे निकले. अब ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो बच्चे तुरंत वही लिख देंगे, 2.303 अपॉन T इज इक्वल्स टू लॉग और A अपॉन A माइनस एक्स, वो लिख देंगे. लेकिन वो नहीं, क्योंकि ना A दिया रखा है ना X दिया रखा है, नथिंग इज़ बीन गिवन टू यू. तो वॉट वी कैन पुट ओवर हियर, 50% कंप्लीट है. 50% कंप्लीट है, यानी हाफ लाइफ पीरियड हमें दिया रखा है.
ठीक है। तो हम वो फॉर्मूले लगाएंगे जो हमारे पास था, k इज़ इक्वल्स टू 0.693/T, ये याद है। तो इसमें क्या होता था, हाफ हो जाता था 50%, और बार बार कह रहे हैं 50% कम्प्लीटेड है, तो 50% कम्प्लीटेड और टाइम भी 50% कम्प्लीटेड है, ठीक है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। अब हम इसको लिखेंगे, K1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0.693, T क्या है 50% कम्प्लीटेड है, ठीक है। K2 0.693, T क्या है 50% कम्प्लीटेड है। ये पहले का है, ये दूसरे रिएक्शन का है। ये मत समझना स्क्वायर नहीं चढ़ाया रखा है मैंने, ये नहीं है कि पावर चढ़ी हुई है, क्योंकि दोनों ही 50% कम्प्लीटेड है। देखो 50% है, सर्टन रिएक्शन 50% कम्प्लीटेड है, जैसे अगेन दूसरा भी 50% कम्प्लीटेड है। तो यानी हमें यहाँ से हम K की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो K1 हमारा 0.693 डिवाइडेड बाई 20, और K2 हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। हम ये सब चीज़ें मिनट्स में ले रहे हैं, अभी कुछ काटना नहीं, क्योंकि ये नहीं बेवकूफ़ी मत करना, नहीं तो और कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। पहला स्टेप हुआ। अब हमें कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी तभी निकालोगी जब K1 और K2 की वैल्यू पता होगी, ठीक। अब हमारे पास सब कुछ है, टाइम भी है हमारे पास अपना वो भी अवेलेबल है, हमें टेम्परेचर भी दिया रखा है। टेम्परेचर भी देख लो, उन्होंने दिया रखा है आपको, T1 की वैल्यू जो है वो 300 केल्विन दी रखी है, और T2 की वैल्यू जो है वो आपको 350 केल्विन दी रखी है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे आर्नियर्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आर्नियस इक्वेशन। अब हमारे पास पॉइंट है log K2/K1 इज इक्वल्स टू 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी log 0.693/569, वैल्यू सब्सटीट्यूट करना एंड प्लीज़ यूज़ कैलकुलेटर्स। आर की वैल्यू वही 8.314 सबसे पेटेंट ही होती है, 1/300 माइनस 1/350। जब आप कैलकुलेट करोगे तो याद रखना इसकी वैल्यू करीबन 242909.66 जूल मोल माइनस 1। प्लीज़ किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लेना, KJ, ठीक है। Next is, in a first order reaction 10% of the reactant is consumed in 25 minutes. Calculate the half life period of the reaction. The time required for the completion of 87.5% of the reaction. So let's talk about what things are given to us. Half life period they are asking you. So when you focus on the half life period, then you should remember that T half is equals to 0.693 K, ये था। अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है। द कॉन्सेप्ट सेज दैट इट इज़ 10% द रिएक्टेंट इज़ बीन कंज्यूम। तो आपका ए की वैल्यू 100 है, ठीक है, यही चीज़ रही, और एक्स की वैल्यू जो है वो 10 है, क्योंकि 10% ही बना है, मतलब प्रोडक्ट जो है 10% बना है, रिएक्टेंट 100 है। तो ए माइनस एक्स हमारा क्या हो गया है 100 माइनस 10 दैट इज़ 90, ये चीज़ हमें गिवन है। अब दूसरी क्या है, टाइम हमको दिया रखा है दैट इज़ 25 मिनट्स, तो वो अलग एक अपना सिनेरियो है 25 मिनट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट के, बिकॉज यहाँ के की ज़रूरत है। अगर हम हाफ लाइफ डायरेक्ट निकालेंगे तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमको कहीं पे भी क्वेश्चन पेपर में के की वैल्यू नहीं दी रखी है, लेकिन हमको ये वैल्यूज़ दी रखी हैं। हमें पर ये समझना है कि व्हाट थिंग्स इज गिवन टू अस। तो दे हैव गिवन यू 10% कंप्लीटेशन, तो रिएक्टेंट 100 रहा होगा, प्रोडक्ट जो है 10% ही बना है, यानी एक 10 बना है एक्स की वैल्यू, तो ये ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 90, टाइम हमको दिया रखा है। अब हम यहाँ से अपना वैल्यू लिख लेंगे अपॉन टी ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो ये 2.303/25 लॉग हमारी 100 अपॉन ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अभी कैलकुलेट करके आ रहे हैं, तो यहाँ से हमको के की वैल्यू निकल आएगी जो हम कैलकुलेट करेंगे 2.303/25। भैया लॉग इसकी वैल्यू लिख लेना, ठीक है। तो 2.303/25 इंटू 0.0453
तो ये वैल्यू हो जाएगी के की 4.173 इंटू 10⁻³ मिनट -1। हो सकता है डेसिमल्स में चेंजेस आए तो परेशान मत होइएगा, मैम के जैसा नहीं हो रहा। आप 2 प्लेस पे ले रहे हो, 3 प्लेस, कोशिश करिएगा 3 प्लेस पे लीजिए। अब आप इसकी जो वैल्यू है 0.693 डिवाइडेड बाई के, इसको आप लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय 4.173 इंटू 10⁻³ तो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज़ अराउंड 166.07। ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकल आएगी। नाउ क्वेश्चन सिल्स इज़ नॉट completed. इट सेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion of 87.5% is been there. So 87.5% means if your, again I am telling you, it's completing. Now you have got the values of k, you have got the values of t is given to you. From there we can have a look. So suppose this completion means 87.5 completing the reaction means जो हमें a की वैल्यू है वो अराउंड 100 है और प्रोडक्ट्स जो हमारे बने हुए हैं वो 87.5 है। तो a माइनस एक्स वही सिनेरियो है, 100 माइनस 87.5 कैलकुलेट कर लेना, ये 12.5 आएगा। ठीक है, k की वैल्यू तुमने अभी पीछे निकाली है तो वहाँ से ले लो 4.173, क्योंकि यही रिएक्शन चल रहा है तो k की वैल्यू चेंज तो होनी नहीं है। ठीक है, यानी वो टाइम पूछ रहे हैं तुमसे, तो t तुमको निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, k log a अपॉन a माइनस एक्स 2.303 अपॉन 4.173 इंटू 10⁻³ log 100 अपॉन 12.5 2.303 4.173 इंटू 10⁻³ ये लॉग आपका 8 हो जाएगा। भाई कैलकुलेटर्स हैं आपके पास, 4.173 इंटू 10⁻³ लॉग की वैल्यू हो गई ये करीबन आपकी 0.9030, तो ये आपका हो जाएगा 498.34 मिनट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम अपने न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। आई डिस्कस अदर न्यूमेरिकल्स ऑल्सो ऑन दिस टॉपिक। 12th you have to do these questions in your classwork copy, and this is the homework which I have given you. The first numerical: a substance decomposed by following first order kinetics. If 50% of the compound is decomposed in 120 minutes, how long will it takes for 90% of the compound decompose? So time निकालना है, and I have given you the time. Your answer should match with it. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 15% completed in 20 minutes. How long will it takes to complete 60%? What is the significance of the rate constant in a rate law expression? ठीक है, उसका भी आंसर इज बीन देयर. सो द थर्ड क्वेश्चन, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10% ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम इन 25 minutes. Calculate the half time of the reaction, the time required. Second question, the time required for the completion of 17% of the reaction. So this is your homework part which you have to do. Now we will do some other numericals also. Now children, there is one of the this thing question, and it has been there to determine the order of reaction as well as the rate law. This is one of the pattern in a tabular form is been asked. Last year this type of question is not asked, maybe possible this year we have the possibility of this question to be asked. So the question says a study of a chemical kinetics of a reaction A plus B products give the following at 25 Celsius. एक्सपेरिमेंट गिवन है, ए का कॉन्सेंट्रेशन बी का दिया रखा है, यहाँ प्रोडक्ट्स अपॉन डी टी दी रखी है वैल्यूज़. ठीक है, सो दे आर आस्किंग यू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए. सेकेंड क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, एंड यू हैव टू राइट डाउन द रेट लॉ. ठीक है, बाय लुकिंग दिस इक्वेशन जो ऊपर दी रखी है ए प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट्स. आप कहोगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमें इसे देखना है तो ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आप 2 बोल दोगे, बट आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू दैट इट इज़ एक्सपेरिमेंटली वैल्यू विच यू हैव टू कैलकुलेट. इट्स नॉट लाइक दैट बाय लुकिंग द रिएक्शन यू जस्ट गिव द आंसर. That is a wrong concept if you are doing so. So experimentally it is calculated unless and until they are asking you कि by looking it you give the order of reaction, then it is fine. But when these experimental values are given to you, then you cannot predict that it's coming in the second order reaction. Of second order तो हमारे कोर्स में है भी नहीं, so it's not necessary that
you will get the answer. I also don't know that the answer is coming second order. When we'll calculate it, then only we can judge that it is coming in the first order or second order, zero order, third order, that we'll see. So let's do the question part. Now suppose we have already got the different values has been there. Now we have to, if you see that your reaction was given to you like this and it was forming you the product, if you want to write down the rate law equation, then what you will write down? You will write down R is equals to K, active mass of A, active mass of B, एंड ओवर ये नथिंग इज़ बीन देयर, कोई इसमें शीजोमेट्रिक वैल्यूज़ नहीं दे रखी है, बट यू डोंट नो ना कि व्हाट थिंग्स है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकालते हैं? शीजोमेट्रिक वैल्यूज़ को एडअप करके तो हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि वी आर पुटिंग हियर एक्स एंड वी आर पुटिंग इट वाई। तो दिस वे विल बी आर फर्स्ट इक्वेशन। ये कह सकते हैं इक्वेशन ना लिखो, एक फॉर्मूला है जो हमने जनरेट करा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी रखी हैं जो आपको आर की वैल्यूज़ हैं। भाई जो डी एक्स अपॉन डी टी है वो क्या है? बेसिकली आपने पढ़ा था ना, आर इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, ये आपको किसकी वैल्यू दी रखी है? ये आपको आर की ही वैल्यू दी रखी है। तो आप सिंपल इज़ दैट यू विल पुट इट इन दिस वैल्यू, क्योंकि आपको 3 रेट्स की वैल्यू दी रखी है, रेट कांस्टेंट की, तो आप तीनों वैल्यूज़ को लिखिए। तो आप इसको लिख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी टैबुलर फॉर्म में लिखा है, आप उसको क्वेश्चन पेपर में आज कर लीजिएगा। तो जो फर्स्ट है वो फर्स्ट रिएक्शन की 4.20 इंटू 10⁻⁻⁶ के उस जगह ए की वैल्यू जो है क्वेश्चन में 1.0 दी रखी है, और बी की वैल्यू जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हमें 0.15 दी रखी है। वाई लिख लीजिए, ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन जो है उसमें हमें आर की वैल्यू जो है वो 8.40 इंटू 10⁻⁻⁶ दी रखी है, और ए की वैल्यू जो है हमें 2.0 दी रखी है, एक्स हो गया। बी की वैल्यू हमें 0.15 दी रखी है, ये वाई हो गई। ये इक्वेशन 2 होगी। ऐसी इक्वेशन 3 जो हमारी है उसमें वैल्यू हमें क्वेश्चन पेपर में 5.60 इंटू 10⁻⁻⁶ इज इक्वल्स टू के। ए की वैल्यू 1.0 एक्स दी रखी है, और बी की वैल्यू हमें 0.20 दी रखी है, वाई। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ए की वैल्यू भी चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। अब सपोज़ करो हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम कौन सी इक्वेशन से किसको डिवाइड करें? तो हम डिवाइड इक्वेशन 2/1 से कर दें। ठीक है, तो अगर हम 2 वैल्यू को 1 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें वैल्यू आराम से मिलेगी, क्योंकि दोनों सेम है। वाई की वैल्यू सेम है, ये कैंसिल अप हो जाएंगे और आराम से तुम्हें ए की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू तो पुटी है। तो अगर हम इक्वेशन अगर हम करें डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, हमने 2 को 1 से क्यों डिवाइड करा? हमने 1 को 2 से क्यों नहीं करा? यहाँ देखिए वैल्यू किसकी बड़ी है? 8.4 बड़ी है ना, तो जाहिर सी बात है ये ऊपर लिखा जाएगा, छोटे से डिवाइड करा जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए इसकी वैल्यू बिग है, सो 8.40 इंटू 10⁻⁻⁶, और यहाँ 4.20 इंटू 10⁻⁻⁶, के 2.0 एक्स 0.15, ये वाई, के 1.0 एक्स 0.115 वाई। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों एक से हैं, कैंसिल हो जाएंगे, एक्स भी हट जाएगा। तो ये आप अपना कैलकुलेटर्स हैं, तो ये आपको वैल्यू जो आएगी अराउंड 2⁻1, और यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आएगी वो 2 और उसकी पावर एक्स आएगी, क्योंकि 1 है ना, ये हटेगा तो ये 2 ही आएगी और ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी बेसिस पे आप आराम से एक्स की वैल्यू कितनी निकल आएगी? आपकी 1 निकल आएगी। तो दिस वे यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो वाई की वैल्यू में, चलो इसी में देखें, ये जो हमने वैल्यूज़ डिप्यूट करी हैं, तो वाई में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले ये देखो, ये दोनों इक्वेशन को देखो, इन दोनों में ये दोनों सेम वैल्यू हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इक्वेशन 1 and 3 ले सकते हैं, लेकिन हम डिवाइड किससे करेंगे? 3 बड़ी है, 1 छोटी है, तो विल डिवाइड इट 3/1। तो लेट्स डू दिस, डिवाइडिंग 3/1 इक्वेशन। ठीक है, पूरा लिख लेना। तो 3 की है 5.60 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 4.20 इंटू 10⁻⁻⁶, के 1.0 एक्स 0.20 वाई 1.0 एक्स
0.15 y, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आएगी 1.33, ये 1.33 y। तो ये क्या हो गया आपका y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये इंडिविजुअली पूछा गया है, ऑर्डर टू ए कितना हुआ इज़ 1, और दूसरा WRT टू P इज़ 1। अब अपना रेट इक्वेशन लिखिए, रेट लॉ इक्वेशन लिखिए आप, क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू K AX BY। बस आप इनकी वैल्यू पुट करिए। वन है ना दोनों की, क्योंकि 1 1 निकली है। सॉरी, स्मॉल आर लिख लो बेटा, ऐसे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले में हम स्मॉल आर ही लेते हैं। ए और बी, ये हमारा निकल आएगा आंसर। तो दिस वे वी कैन डू, ये इस तरह की क्वेश्चंस आएंगी, आते हैं, समझ में आ गया ना कैसे करना है तुम लोग को। तो ये वाला भी एक पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर में जो आता है, विच यू हैव टू डू इट, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दैट इज आस। ऑल्टरनेटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट और उसमें आता है, ये आता है, तो आपको याद करना है, मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग, दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। प्लीज़ डू दिस न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल अपना ज़रूर कर लेना as a homework. It is your homework. I am showing you this thing also, what questions you have to do in this part. So please, what are the orders with respect to A and B, जैसे अभी निकाला था, तो A और B की भी आप निकालेंगे। फिर आप अपना what is the overall order, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या है वो मैं भी बता दूंगी आपको पीछे वाले उसमें कैसे आप करेंगे। बस आपको x और y को जोड़ देना है, एंड राइट द रेट लॉ इक्वेशन, सॉरी लास्ट वाला मत करना, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, ये एक्चुअली अब मैकेनिज्म आता नहीं है तो ये क्वेश्चन मत करना, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। सो दीज थिंग्स यू हैव टू प्लीज़ डू इट, एंड दिस इज़ योर होमवर्क, and it's based on the this numerical which I have discussed earlier, so it is based on that only. तो ये दोनों आप निकाल लेंगे, ओवरऑल ऑर्डर भी निकाल लेंगे, क्योंकि देखा नहीं था जैसे एक्स और वाई जो ऊपर वैल्यू निकली थी, बस आपको जोड़ देना है, तो उससे ओवरऑल ऑर्डर की रिएक्शन निकल आएगी। रेट लॉ इक्वेशन आप बना ही लेते हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो जो रेट लॉ इक्वेशन आएगी उसी से ही आप निकालेंगे, कुछ और वो मत लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको मालूम नहीं है किस ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। दिस वे यू हैव टू डू इट, प्लीज़, दिस इज़ योर होमवर्क पार्ट विच यू हैव टू कंप्लीट इट इन योर कॉपी।